Yeah, hello students. In the last lecture of this exercise 2.2, I remember while going I was telling you that you all can try this question number 15. These are all prove that questions. You can see that 1 plus tan square plus 1 plus 1 upon tan square a, and many of these type of sums you would have done it in your class 10th also in trigonometry, right? Because till now we haven't studied any new formula as such, right? We have to use the same fundamental formulas, right? That sine into cosec is 1, then sine is 1 upon cosec, cosec is 1 upon sine, right? Then tan into cot is 1, tan is 1 upon cot, cot is 1 upon tan. Cos n into sec is 1, so cos is 1 upon sec, sec is 1 upon cos. Yes, and then tan is sin by cos, cot is cos by sin. ये फॉर्मूलेस थे और बाद में थ्री आइडेंटिटीज पढ़ा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and cosec square is 1 plus cot square theta. Only you have to use these formulas to prove all these questions. Okay, so today we will be focusing on this question number 14 only. We'll be doing this 12, 13, 14 later. थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, इसके लिए हम लोग ये पहले 15 के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट करेंगे. But see, prove that or in any of the problem. See, in maths, I believe that if a teacher solves a particular problem first, then the students do not get the learning which they should get it. So it's always good that you do first, and when you are finding a difficulty at some step और नहीं सॉल्व हो रहा है समथिंग, एंड देन यू टेक द हेल्प ऑफ द टीचर. नहीं तो क्या होगा, अभी मैं बताऊंगा तो आपको जो सोचना है आपका थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं होगा, राइट? कि ये प्रॉब्लम को कैसे सोचेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टैन को साइन बाई कॉस करूँ कि टैन स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर माइनस 1 करूँ, अच्छा ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ये लर्निंग है. नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको ये सम आ जाएंगे, बट एग्जाम में ये सम के अलावा अगर थोड़ा भी चेंज कर दिया देन यू मे नॉट गेट इट, राइट? राहुल हैज अ क्वेश्चन, सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 10. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर राहुल? यू आर नॉट गेटिंग इट. राहुल इज आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, can anyone explain me? I can, you can raise your hand so that I can unmute you, or you can just tell me in the chat box if you have solved it. So you can explain how can we solve. Acha, Anish has done it. Fine. So I'll unmute Anish so that ऐसे तो बहुत लोगों ने किया रहेगा. Yeah, hello Anish. Can you unmute yourself? हेलो सर. Yeah, hello, hello. Yeah. सर स्क्रीन शेयर करूँ कि मतलब बोलूँ? अच्छा, स्क्रीन शेयर करना है तो जस्ट अ मिनट, आई हैव टू मेक यू को होस्ट देन. जस्ट अ मिनट. Yeah, you can share the screen now. I will stop my share. ओके सर. Okay, many of you have done it. Parth also done, Prem also done. Very good. What about other students? Only 3 people have done it. Arafat also, very good. Harshit, okay. Saisha is also done, good. Chalo, come on Anish, share it fast. Saisha is telling that we can substitute cosec theta by 1 plus cot square theta. Think Saisha, हेलो सर. do that. Cosec हेलो सर. square theta is 1 plus cot square theta, isn't it? It's not square, na? Okay, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी अनीश ने जो किया है उसको हम देखते हैं. अनीश जरा ये रोटेट करो ना. आई मीन थोड़ा सा मुझे लैपटॉप में ऐसा क्रॉस दिख रहा है आपका. यस सर. कैन यू रोटेट इट? सर बट हाउ? अच्छा, यू हैव लाइक यू हैव क्लिक द फोटो एंड शेयरिंग इट. यस. अच्छा अच्छा,
I thought you have switched on your camera, video camera. No problem. You can see that. थोड़ा सा zoom कर लो आप. Okay. So what he has done, Rahul can see, converted into sine and cos. Yes. Cosec is 1 upon sine, cos upon sine, then 1 plus cos upon sine. फिर देखो उसने क्या किया, साइन को उधर लेकर गया, सॉल्व किया और बाद में कुछ तो कॉस आया. Okay, you can turn off your sharing, Anish. Thank you very much. Okay, sir. See, Rahul, whenever you have a trigo question, okay, कोई बच्चा अगर ऐसा बोलता है ना कि सर मुझे ये क्वेश्चन आया ही नहीं, अगर ऐसा कोई बच्चा बोलता है इसका मतलब उसने ट्राई नहीं की. सी, कभी भी कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं आएगा, आप रॉन्ग करो. सी, अभी ये क्वेश्चन देख के राहुल क्या लगता है, व्हाट कैन आई डू, कोसेक थीटा है प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है. अभी पहले मैं सोचूंगा अभी जैसे सायशा ने बोला कि कोसेक स्क्वायर, सर कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दो, बट सायशा ने बोलते हैं आइडेंटिटी को का स्क्वायर भूल गया वो, कि कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इट इज कोसेक. तो इसका मतलब आइडेंटिटीज यूज नहीं होगा. कॉट स्क्वायर भी नहीं है तो उसमें भी आइडेंटिटीज यूज नहीं होगा. तो मैं कर क्या सकता हूँ. तो 10th स्टैंडर्ड में हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया है, हाँ, रामबाण इलाज. यू नो मीनिंग ऑफ रामबाण इलाज. रामबाण इलाज मतलब कोई भी बीमारी हो एक ही मेडिसिन देने का, वो मेडिसिन को बोलते हैं रामबाण इलाज. राइट. सो कभी भी आपको अगर ट्रिगो में प्रॉब्लम आएगा, नहीं सॉल्व होता है, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस, दैट्स ऑल. साइन कॉस में कन्वर्ट करने का, ठीक है. साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, थोड़ी देर तड़पोगे तो फिर आपको आंसर आ जाएगा. आंसर नहीं भी आएगा तो भी आपको क्लिक हो जाएगा कि आप किधर रॉन्ग हो और आपको क्या करना है. तो आपने क्या किया, इसको 1 अपॉन साइन किया, इसको कॉस अपॉन साइन किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई लिया या एलसीएम लिया और फिर सॉल्व किया. हाँ, राहुल ने अभी मैसेज किया है कि उसने कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया. बट अभी समझा ना आपको राहुल, ये कोसेक है, कोसेक स्क्वायर नहीं है ना, ये तो मिस्टेक अपना होना ही नहीं चाहिए. राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, सो विल स्टार्ट विथ 15 प्रॉब्लम नाउ. चलो, ऑल ऑफ यू स्टार्ट. 15 का फर्स्ट, प्लीज राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 1 plus tan square a, we have to prove is equal to sin square a minus sin to the power 4a. First write down the question, tpt पूरा question, फिर लेफ्ट हैंड साइड. अभी now you can see on the right hand side we want in terms of sin. ठीक है. सो इतना तो समझता है कि अपने को सबको साइन कॉस में कुछ तो कन्वर्ट करेंगे, कुछ तो सॉल्व होगा. राइट. अभी देखो आपको दिखता रहेगा दो ब्रैकेट, यू मस्ट बी थिंकिंग मल्टीप्लीकेशन, अरे बट दिस इज प्लस. ये ब्रैकेट केवल आपको डराने के लिए लिखा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है. ये ब्रैकेट का कोई मीनिंग ही नहीं ना, बिकॉज इट्स अ प्लस साइन हियर. अगर इधर माइनस होता देन ब्रैकेट हैज सम सेंस. अगर इधर कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन है, देन इट हैज अ सेंस. सो नाउ इट इज सिंपल. देयर आर फोर टर्म्स, 1 tan square a, 1 1 upon tan square a, isn't it students? And we have to solve this. So come on, start doing it. Take left hand side and start doing it. Come on. I will also write down the question. Let me take out the notebook now.
ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। अभी देखो, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं मैथ्स टीचर हूँ, ठीक है। और अगर सपोज मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसा सोचना चाहिए, कैसा इसको सॉल्व करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि अरे ये तो राइट में साइन है, तो देखो अगर मैं साइन में इसको सोचता हूँ कन्वर्ट करने का, तो क्या कर कैसे करेंगे कैसे हम लोग ट्राई करेंगे इसको। सो मैं पहले सोचूंगा, पहले तो ब्रैकेट निकाल देता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट की वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है। सो आई विल रिमूव ऑल द ब्रैकेट्स। 1 + tan² a प्लस 1 अभी 1/tan² है, तो उसको तो मैं cot² a भी लिख सकता हूँ, राइट। ओके, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे को दिखता है सीधे सीधे, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है। यस, 1 + tan² फॉर्मूला है, 1 + cot² भी फॉर्मूला है। यस, तो 1 + tan² की जगह फिर मैं सोचूंगा कि सर इसको मैं sec² लिख सकता हूँ, और इसको मैं cosec² लिख सकता हूँ, राइट। सो आई विल राइट दिस एज sec² प्लस cosec²। अभी कोई बच्चा ऐसा रहेगा कि सर उसको क्लिक नहीं हुआ कि 1 + tan² है, तो क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा, वो या तो tan² की जगह लिखेगा sec²(-1), तो वो -1, ये +1 कैंसिल। cot² की जगह लिखेगा cosec²(x-1), तो वो -1 और ये +1 कैंसिल। अरे ये सर, बच्चों ये एक मेथड हो सकता है। या तो बच्चा ऐसा कर सकता है, साइन अपॉन कॉस और इसको कॉस अपॉन साइन। तो देखो, अगर इसको साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो sin² अपॉन cos² आएगा, बट व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट cos² प्लस sin² अपॉन cos²। बट cos² प्लस sin² 1 हो जाएगा, तो वापस 1/cos² sec² ही बचेगा, यानी घूम फिर के इधर ही आना है आपको। ये अंडरस्टैंडिंग? यस, तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। बट एज वी नो दैट राइट हैंड साइड इज इन टर्म्स ऑफ साइन, तभी तो नहीं किया कन्वर्ट, बट अभी तो करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो भाई सेक होता है 1/cos, कोसेक होता है 1/sin। सो देन आई विल थिंक कि चलो sec² को लिखते हैं 1/cos², उसके बाद इसको लिखते हैं 1/sin²। ये भी बराबर है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, अच्छा फिर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्या करेंगे, क्योंकि उधर तो राइट हैंड साइड में 1/ है, उधर दो टर्म नहीं है, ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे जो भी sin² का टर्म है। तो मुझे 1 तो आ गया ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि सर अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो sin² × 1 sin², cos² × 1 cos², तो ऊपर sin² प्लस cos² आएगा, वो 1 हो जाएगा। तो चलो न्यूमरेटर तो आया, उतना तो करूं पहले मैं। तो चलो इधर किया मैंने sin² a प्लस cos² a अपॉन डिनोमिनेटर में cos² a इंटू sin²। ऐसे ही होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट, दिस इंटू दिस इंटू दिस एंड दीज टू मल्टीप्लीकेशन, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में, अभी ऊपर तो 1 आ गया, बट नीचे ओनली साइन चाहिए। अभी ओनली साइन में तो ये इधर साइन है, बट ये cos² है ना, तो cos² को क्या करूंगा मैं, 1 - sin²। सो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 1 हो गया, cos² आई एम राइटिंग एज आइडेंटिटीज 1 - sin² into sin²a। Now I will multiply sin² inside this. So I will get 1/sin² into 1 is sin² minus sin² into sin² sin raised to 4a, and then you will find that क्या यही तो अपना right hand side था, which is equal to right hand side, and hence the proof। मुझे बताओ मैंने कौन सा 11th स्टैंडर्ड का डिफिकल्ट कंसेप्ट या फॉर्मूला यूज किया। एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो 10th स्टैंडर्ड में आपने नहीं यूज किया। दिस इज एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, राइट। हेलो, 10th में भी सेम था, ईशान बोल रहे हैं, और 11th में भी सेम। सबका हो गया स्टूडेंट्स, एवरीवन हैव डन इट, इट्स क्वाइट इजी प्रॉब्लम। वेरी गुड। सो दिस इज 15th फर्स्ट प्रॉब्लम आई थिंक, राइट, 15th फर्स्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, cos² a -1 cot² a +1।
cos square a minus 1, cot square a plus 1. Answer I want as minus 1, I think, right? Yes. इसका मतलब सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, साइन कॉस सब सॉल्व ये हो जाना चाहिए और आई शुड गेट एज -1. क्या करेंगे? What can we do? तो अभी मुझे मालूम है कि सबको सॉल्व होना चाहिए. अभी ये तो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर साइन कॉस में है, मतलब कॉस में है, ये कॉट है. हो सकता है आई कैन कन्वर्ट दिस into something, right? So either you convert cot is as cos upon sin and then cross multiply, or you can simply write 1 plus cot square theta is cosec square theta. Yes, students? Yeah. So let me write down that. And this is as it is. Cos square a minus 1 into this is cosec square a. Right? Now I know that cosec square can be written in terms of sine. ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो सकता है, एंड कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं ना. यस, cosec square theta into cos square theta is tan square theta. Absolutely fine. बट डोंट यू थिंक ईशान वो tan स्क्वायर लेके क्या करेंगे हम? वो तो और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा ना. हमको ये देखना है कि वो कैसे सॉल्व होगा. तो मैं देखता हूँ बाहर साइन स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो अंदर शायद साइन विन में करूंगा, कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा या मल्टीप्लाई होगा तो साइन कैंसिल होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो व्हाट आई विल डू हियर नाउ, आई विल राइट cos स्क्वायर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर. दिस इज cos स्क्वायर इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर. बाकी -1 तो एज इट इज जैसा है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू cosec square a. That cosec square a can also be written as 1 upon sin square a. Right, students? And now you can see that plus 1 and -1 gets cancelled. So I will be left with minus sin square a into 1 upon sin square a. So sin square a gets cancelled. So the final answer is -1. And this is your right answer. See what Ishan has told me, that convert cosec को अंदर multiply करने का, no problem, you will get the answer from that method also. Trigo और maths में तो यही, it's not that you have to solve by a particular method only. उससे भी आएगा, एक दो स्टेप बढ़ जाएगा, राइट? बट हमको प्रैक्टिस करते करते आना चाहिए ना, कि मतलब थॉट प्रोसेस में वो तो क्या है, आंख बंद करके करने वाला काम है. अच्छा मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई कर दो. अरे क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या फायदा होगा उससे? तो 2 स्टेप आगे का सोचना पड़ेगा हमको. विल इट हेल्प मी इन द आंसर? हाँ चलो, नहीं आप इतना विजुअलाइज कर पा रहे हो वो नो प्रॉब्लम, डू इट. easy method conserve time in JEE, right है, and long method takes more time in JEE. Then what will happen? अगर हाँ, अच्छा आई टूक इट इन रॉन्ग वे, सॉरी ईशा. देखो कभी कभी क्या होता है, हम जेई स्टार्ट करेंगे ना, तो कभी कभी मैं बताऊंगा आपको, नहीं आता है शॉर्टकट, नहीं आता है इजी मेथड, डू इट बाय लॉन्ग मेथड, बिकॉज एक्यूरेसी भी तो इंपॉर्टेंट है ना. स्पीड है बट एक्यूरेट नहीं है आंसर, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? सर मैंने एकदम 1 घंटे के अंदर 50 सम सॉल्व कर डाले. अरे बट 50 में से तेरे 20 तो रॉन्ग ही निकल गए, राइट? बट तुमने 50 के जगह 40 सम किए रहते और उसमें से तुमने बोलते ना 35 या 40 तक राइट हुए रहते, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो स्पीड is important and as well as accuracy is also important.
सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो ये इसमें दोनों हमारा सेव हो गया, स्पीड भी मिल गया और एक्यूरेट भी आंसर है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड वन, प्लीज राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, साइन प्लस सेक द होल स्क्वायर cos plus cosec the whole square is 1 upon cosec into sec. चलो स्टार्ट करो, I will not give any hint, you think and do.
Yes, how many of you have done it? Only one student replied me that he has done it. What about other students? Come on. No problem. It's first we are doing it for the first time. This type of problem, you take your time. Answer आना चाहिए. That's all. So Anish has done it. Anish, you can WhatsApp me the solution so that I can check. Yes, anyone else who have done it?
अनिश हैज डन इट राइटली. ठीक है अनिश आपका, ठीक है. Yes, anyone else? It's not that lengthy too. Okay, let me share you the solution of Anish, because even if I solve it, it will take time. So it's better to show you his solution only. So it was quite easy. You can see here what he has done. Left hand side, okay. Simple, a plus b the whole square. Here also a plus b the whole square. So a plus b the whole square is a square प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साथ में लिखा है, नो प्रॉब्लम. ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट. फिर उसकी वजह से इस स्टेप में भी वही किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट. देन he observed that we already have sine square here and cos square here, right. देखो, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो उसकी जगह 1 लिख दिया और बाकी सबको वैसा ही लिखा. तो बाकी सब क्या बचे, देखो. Yes, you have 2 sin sec, he has written that. You have 2 cos cosec, he has written that. And then we have sec square x, sec square theta and cosec square theta, वो भी लिख दिया. आफ्टर दैट sec को उसने 1 अपॉन cos लिखा, तो sin इंटू sec है, sin थीटा मिसिंग है अनिश, sin थीटा, तो sin अपॉन cos हो जाएगा. कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन हो गया. बाकी दोनों को वैसा ही लिखा, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, ठीक है. फिर इसमें क्या किया, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस. सेक स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर. इसमें से 2 कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि नेक्स्ट स्टेप में 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा कॉस साइन. यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर 1 और नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर. तो देखो इधर बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉस एंड यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन कॉस साइन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर. अभी इसको क्या किया, सॉरी ये 2 है, 2 अपॉन, क्योंकि वो 2 था ना कांस्टेंट, ये 2 तो रहेगा ना. हाँ, अभी ये कॉस ऊपर जाएगा या साइन ऊपर जाएगा, तो साइन का क्या हो जाता है कोसेक, और कॉस का क्या हो जाता है सेक, तो इसको लिख दिया 2 सेक इंटू कोसेक. वैसे ही कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर गया तो कोसेक स्क्वायर. अभी आप इसको अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, इसको ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक थीटा कोसेक थीटा को सेक थीटा कोसेक थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं. then this is the expansion of 1 plus sec theta cosec theta the whole square. yes, आपको जो राइट हैंड साइड चाहिए ना 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड करोगे तो यही आएगा. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बट किसी ने नहीं किया अभी तक, तो मतलब ये इजी था, आना चाहिए था आप लोगों को. ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू.
Okay, so like this, all these sums you have to try at home. Okay, we have already tried to solve 3-4 problems. अभी कैसे हर प्रॉब्लम में यही है, मतलब you have to try, then only I will explain you as I told you in the beginning. So it's better take 1 day 2 day, solve all these problems. ठीक है, एक बार सॉल्व किया नहीं आया, दूसरी बार सॉल्व करो कट करके, तीसरी बार सॉल्व करो कट करके. क्वेश्चन देख के ऐसा बोलोगे सर नहीं समझा, so I will not accept it, right? You have to write down the left hand side, think what can you do, apply sine cos conversion, right? And then do it. Definitely you will get the answer, right students? Okay, now so 15 question is all yours, you have to try, and any question if you don't get it then definitely I'll help you. Okay, now we can start with the 3 questions which we wanted to do. In that we will start with 14 problem first. Find the value of sine 19 pi by 3. Let me just write down the question. Question number 14. We have to find the value of sine 19 pi by 3. Okay. Now what is 19 pi by 3? It's in degree on radian. Obviously it's in radian, right? Okay. Now we have heard about sine 30, sine 30, we call it as pi by 6. We heard about pi by 3, that is 60. Then we have heard about pi by 4, that is 45. Pi by 2 is 90. Pi is 180. 3 pi by 2 is 270. 2 pi is 360 degree, right? 19 pi by 3 is something different, right? So there are many ways to get the answer of this. Easiest way is to convert this into degree first. 19 पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा डिग्री कन्वर्जन? कम ऑन टेल मी. देयर आर मेनी वे टू कन्वर्ट इट. पाई बाई 3 को 60 लिख दो, 60 इंटू 90, 19, राइट? या तो पाई को 180 पुट करो एंड देन सॉल्व, या तो इंटू 180 अपॉन पाई करो. इट्स सो मेनी. प्लीज टेल मी. Priya, you corrected yourself, but please check again. Okay. Everyone is telling that it is 1140 sine 1140 degree, right? Okay. Let's write down the table of 360 because वो rotation वैसा ही होता है ना. अच्छा चलो 360 का टेबल नहीं बाहर है आपको, 18 का टेबल तो बाहर होगा ना आपको. 18, 18 2s are 36, then 54, then 72, then 900, right? Then 108, then 126, right students? Then 144 and then 180. Sorry, क्या लिख रहा हूँ? 162 and 180, right? चलो 18 का क्यों मैंने बोला? बिकॉज 3 देखो 36 करोगे तो और भी इजी होगा, बट फिर 36 का टेबल हमको इतना बाहर नहीं रहता ना. अभी 36, 32, 6 2 72, अभी 3 हमको सोचना पड़ेगा. और अच्छा 108 है, फिर 4 फिर वापस सोचना पड़ेगा. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 का बाहर रखेंगे टेबल. अभी इससे क्या फायदा होगा ध्यान से देखो. 1140 हमको पहुंचना है. आई विल ड्रॉ
x axis and y axis. I know that this is 180, right? Then again this is 180. तो मैं क्या करूंगा, 180 180 180 ऐसे काउंट करते जाऊंगा till I reach near to 1140. Okay, so let's start doing it. Okay, so 180 I'll start. So this is 180, then 18 twos are 360, right? 3s are 540, 4s are 72, 5s are 90, 6s are 108. Yes, देख लो तुम लोग सब लोग, 1080 degree. How many rotations you can see this? 180, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times. Here अभी 6 times 6 रोटेशन नहीं हुआ, सॉरी 6 हाफ रोटेशन. 180 वाला है ना ये, तो 6 हाफ रोटेशन हुआ, इधर आया 1080. अभी नेक्स्ट मैं नहीं कर सकता हूँ कंप्लीट, क्यों? बिकॉज नेक्स्ट हो जाएगा 1260, बट आई नीड 1140. तो अभी मैं क्या सोचूंगा कि इधर तक तो 1080 आ गया, अभी कितना मिसिंग है? तो 1140 से 1080 सब्ट्रैक्ट किया मैंने. सो हाउ मच इज लेफ्ट? 06 यानी 60, राइट? इसका मतलब ये जो ब्लैक वाला मार्कर है ये ऊपर जाएगा कितना तक? जब तक वो एंगल 60 डिग्री नहीं हो जाता है. समझे क्या? ये 60 डिग्री होगा. सो इट मीन्स कि 60 डिग्री जो ओरिजिनली है उसका को टर्मिनल 1080 है. जो 60 डिग्री का आंसर होगा वही 1080 का आंसर होगा. अरे सॉरी 1080 बोल रहा हूँ, 1140 का होगा. यस, this is 1140. I have shown here 60, but 60 is only this much. But this angle we are also getting by 6 half rotations plus something, right? So sine 1140 is same as sine 60, and that is root 3 by 2. I hope it's clear, everyone. Yes, I think सबको समझ में आ गया इसको कैसे करना है. Okay. उनके जाने के बाद लिफ्ट को जरा सैनिटाइज कर लेना. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड जिससे आप ऐसा काउंट करके यू कैन रीच टू एनी ऑफ द स्टेप्स, राइट? बट देर आर डेफिनेटली फ्यू अदर मेथड्स ऑल्सो जिससे आप और भी क्विक हो सकते हो. बिकॉज ईयर 18 का टेबल आना चाहिए, फिर ये रोटेशन रोटेशन करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा. फ्यू स्टूडेंट्स फाइंड इट दिस मेथड वेरी सिंपल. अभी एक मैं और एक मेथड बताता हूँ, देखो अगर वो आपको कैसा लगता है, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड की विच मेथड यू हैव टू गो विथ. So it was sine 19 pi by 3. Okay. Now the second method tells that 19 pi by 3 है, ठीक है? अभी ये जो डिनोमिनेटर 3 है ना, इसका मल्टीपल सोचो क्या होगा. 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, जो इसके लिमिट इसके अंदर आता रहेगा. तो 3 6 जा 18 तक जाता है, 3 7 जा तो नहीं होगा, राइट? हाँ. तो what I can do is, can I write this as like this, sine 18 pi plus pi by 3? Any problem? I can write like this. Okay, then I can separate them. 18 pi by 3, 6 pi plus pi by 3. Yes, everyone clear?
Okay. Now again I will draw y-axis, x-axis. Now this is the question of 6 pi plus theta. So this clearly indicates pi means this much, right? अब लास्ट क्वेश्चन में तो कैसा था, हमको बाय हार्ट करना पड़ता था ना 18 का टेबल, राइट? तो हमको तो मालूम है पाई मतलब 180, तो 6 पाई मतलब 1 2 3 4 5 6 प्लस प्लस मतलब ऊपर पाई बाई 3. So I will directly write here like this. This is pi by 3. So how many rotations? 1 2 3 4 5 6 and then this much. So this is quicker than the before, degree wale se. What do you think? बट इसमें हमको कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं. आई थिंक इन 10th standard you would have learned like this, allied angles. You remember that sin 90 plus theta, sin 90 minus theta, sin 180 plus theta, sin 180 minus theta. Have you learned that method? Achha, fine. Then I'll have to explain that first. Then only you can do this. Because see, अभी तो तुमको समझ में आ रहा है. अच्छा सर कितना सिंपल हो गया, ये तो sin 30 है. But sometimes it is minus sin 30, 60, sorry. Sometimes it is sin becomes cos. तो वो कभी होता है, तो उसके लिए वो अलाइड एंगल्स का एक फॉर्मूला है, दैट आई विल टीच यू. फिर ये मेथड से आप कर लेना, ठीक है? ओके. बट फिलहाल दिस मेथड लुक्स इजियर देन द प्रीवियस, क्योंकि 6 पाई आ गया. और उसमें भी लॉजिक है, देखो लॉजिक क्या है. अगर पाई का मल्टीपल इवन है, so it will land up on the positive x-axis. And if पाई का मल्टीपल ऑड है, it will land up to the negative x-axis. क्योंकि अभी तो ये 6 था, तुमने काउंट कर लिया. मैंने बोला 51 पाई प्लस पाई बाई 3. चलो काउंट करो अभी. 51 पाई प्लस पाई बाई 3. तुम बोलेगा अरे सर कितना करने का काउंट? हाँ, 1 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई. अंडरस्टैंडिंग? तो हमने क्या कर लिया, हमने एक मेथड ही बना दिया. ऑड मतलब नेगेटिव साइड, इवन मतलब तो 51 पाई रोटेट होके किधर आने वाला है, रोटेट होके ऐसा होने होके इधर आने वाला है, ऐसा स्टक होने वाला है. फिर हम देखेंगे उसके ऊपर कितना, तो ऐसा एंगल हो जाएगा. राइट, वेरी गुड. ठीक है, तो फिलहाल मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ, बट इसके बाद मैं आपको अलाइड एंगल भी बताऊंगा. साइन पाई बाई 3 विच इज √3/2. फाइन. चलो अभी 2 सम उसके अंदर और है ना, वो जरा डिग्री मेथड से कर लो, ये वाले मेथड से मत करो, वो लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं. फिर मैं जब अलाइड बताऊंगा ना, तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा. प्लीज सॉल्व दिस 1140 and this 25 pi by 3. Come on, cos 1140. सेम मेथड, मैं पहले का सम का मेथड आपको शो कर देता हूँ, सो दैट इट विल हेल्प यू.
Okay, so 1 by 2 everyone is telling. Let me check. 1140 को कैसे सेपरेट किया? टेल मी. Cos 1140. How have you divided it? So 1080 plus how much? 60 only. So it is going to be cos 60. So it is going to be 1 by 2. But can you check your answer from the textbook? Come on, student. आंसर जरा चेक करो. टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर चेक करो. What is the answer given there? Okay, so it's 1 by 2. Now I'll give you one instance here and tell me इसका आंसर क्या होगा. अच्छा, इसके जैसा ही थर्ड वाला प्रॉब्लम कर लेना. अभी अलाइड एंगल्स का क्या यूज है, आई टेल यू दैट. सपोज यू नो okay, suppose you have, just let me calculate. ट्वेल्व हंड्रेड डिग्री. टेल मी कैसे करेंगे 1200 डिग्री पे. टेल मी फास्ट फास्ट. 18, 18 to the 36, then 540, then 720, then 900, and then 1080. So how much is missing from 1080? 120. So 120 कैसा होगा? अभी इधर से मैंने स्टार्ट किया, इट रीचेज हियर. सो कितना ऐड हुआ? 90. अभी और कितना ऐड करना बाकी रहेगा? और कितना ऐड करना बाकी रहेगा? 30. सो डेफिनेटली ऐसा कोई 30 डिग्री होगा इधर, ऐसा उधर तक हो जाएगा. यस और नो? सो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज कॉस ऑफ दिस, व्हाट विल यू आंसर? व्हाट विल यू आंसर?
60? क्या बोल रहे हो राज? What will be the answer of cos 1200? Come on. Yes. Okay. Cos 120 you are saying. But cos 120 how will you get? Many are saying 90 plus 30. But can we separate cos 90 plus cos 30 like this? Can we do like this? No. We cannot separate cos 90 plus 30 as cos 90 plus cos 30. Right? So then how to get that? So that is the reason we have to study allied angles. When we will learn allied angles, then it will be very easy to find out 120 or any other quadrants. Luckily, the two questions which we have solved, that lies in the first quadrant. And we all know that in the first quadrant, all trigonometric ratios are positive. So इसकी जरूरत नहीं पड़ी allied angle की, right? But अभी ये second quadrant में आ गया, तो इसको कैसे करना है वो अपने को सोचना पड़ेगा. ठीक है. So I'll tell you what are allied angles और उसको कैसे solve करते हैं. So second question 1/2 is the correct answer. Third question anyone did? हाँ वो घर पे कर लेना. ठीक है. 25 something is given. Convert it in degree and do it. Now फटाफट ये allied angles के फॉर्मूले लिख लोगे. Allied angles, please make a heading. First, sine 90 minus theta. ऐसे लिखते जाओ. Cos 90 minus theta. Sec 90 minus theta, and so on. Complete the chart. Sorry, cos के बाद tan लिखो. Then cot. Sec and cosec. Tell me if you have done writing this left hand side. Okay. Now, tell me in coordinate system, अच्छा इन everywhere this 90 minus theta में जो theta है ना वो acute angle है. क्या है? Acute angle. Acute angle means yes, come on, less than 90. So just think, if there is one angle, directed angle, whose measure is 90 minus theta, where will it lie? This angle will lie in which quadrant? Obviously first, because always directed angle जो होता है उसका इनिशियल रे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है. टर्मिनल रे अगर 90 होता है तो ऐसा होता है. 90 minus acute angle. Acute मतलब 90 minus less than 90 something. So definitely it will be somewhere in between here. Right? This angle can be 90 minus theta.
So 90 minus theta, this angle lies in first quadrant. That is why answer of all these will be positive, because in first quadrant all trigonometric ratios are positive, right? But sine 90 minus theta will become cos theta. Cos 90 minus theta will become sine theta. Sine changes to cos, cos changes to sine. Tan changes to cot, cot changes to tan. Sec changes to cosec, and cosec changes to sec. So sine 90 minus theta is plus cos theta, or simply cos theta. Yes, students? Done writing this? Okay. Now, ये फर्स्ट सेट था, अभी सेकेंड नंबर डालो. सेम लिखो, 90 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा लिखो एवरीवेयर. सेकेंड 90 प्लस थीटा. कम ऑन. साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब कुछ. व्हाट इज योर क्वेश्चन ईशान? आई डिडंट गेट दैट. माइनस साइन 60 क्या है वो? अभी तो हम लोग इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये फॉर्मूला लर्न कर लो पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं. यस, 90 प्लस थीटा लिखा तुमने. अभी मुझे बताओ, इन 90 प्लस थीटा where the angle will lie, terminal ray of the angle. So definitely this is 90, so 90 plus bola hai. So definitely this will be 90 plus theta. Do you all agree? So the terminal ray lies in the second quadrant, so the angle is in second quadrant. And what can you say about second quadrant, students? Come on. In second quadrant, only sine and cosec are positive, right? So in your list, considering ये सब पॉजिटिव है, इधर मैं लिख देता हूं एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा. ठीक है. साइन विल बी पॉजिटिव एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव. तो साइन 90 प्लस थीटा विल बिकम कॉस थीटा. चेंजेस तो होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक. बट पॉजिटिव नेगेटिव किससे डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट के ऊपर. तो क्वाड्रेंट सेकेंड है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज पॉजिटिव, कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट इट. मेरे जैसा मत लिखो, आप नीचे लिखो, सबका एंगल लिखो. साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड सो ऑन. प्लीज कंप्लीट 90 प्लस थीटा. Done. Next, third note. Third one. Sine of 3 pi by 2 plus theta. पहले माइनस लिखो, चलो चलिए, हमने माइनस लिखा था ना. 3 pi by 2 माइनस थीटा. चार्ट बनाओ. साइन 3 pi by 2 माइनस थीटा, कॉस 3 pi by 2 माइनस थीटा, एंड सो ऑन. सब चार्ट बना के रखो, उसके बाद एक साथ हम लोग करते हैं. उसके बाद बनाओ 3 pi by 2 प्लस थीटा. उसके बाद 180 माइनस थीटा.
then 180 plus theta, then 360 minus theta, then 360 plus theta. सबका बनाओ, ऐसा शॉर्टकट मत करो मेरे जैसे, साइन कॉस टैन कॉट सबका लिखते जाओ, चलो जल्दी जल्दी. और लिख के हो गया तो फिर बोलो. Completed all? Okay, कंप्लीट करो करो. Okay, many of you have done it. Even if not done, please pay attention here now. Now tell me, 3 pi by 2 minus theta lies in which quadrant? 3 pi by 2 minus theta lies in which quadrant? Yes? Third, do you all agree? Because we know 3 pi by 2 means what? This is 3 pi by 2. 3 pi by 2 से थोड़ा कम, तो थोड़ा कम बोलेगा तो पीछे आना पड़ेगा ना. प्लस बोलता तो हम नेक्स्ट में जाते, right? So now as it is in third quadrant, we know in third quadrant which all are positive? Tan and cot. Yes, no? Okay. So again, the rule is same. Sine becomes cos, cos becomes sine.
tan becomes cot, cot becomes tan, sec becomes cosec, and cosec becomes sec. But the only difference is all will be all will be negative except tan and cot. So tan will be positive, cot will be positive, rest all will be negative. See, नेगेटिव पॉजिटिव आंसर को देख के नहीं करना है. मैं देखो tan पॉजिटिव बोला तो मैंने इसको पॉजिटिव किया और इसको पॉजिटिव किया. tan of 3 pi by 2 minus theta, cot of 3 pi by 2 minus theta. Okay, now 3 pi by 2 plus theta lies in which quadrant? 3 pi by 2 plus, so it will lie in fourth में कौन कौन पॉजिटिव होता है? cos and sec. So cos and sec will be positive, right? So again rule is same, sine becomes cos, cos becomes sine, tan becomes cot, and this is tan, this is cosec, this is sec. Please complete along with me. cos will be पॉजिटिव, तो सेकंड वाला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव. गलती से ये ऊपर वाले cos को पॉजिटिव मत करना, वो तो साइन का आंसर है ना, तो हमको इसको देखना है. cos of 3 pi by 2 plus theta positive, sec of 3 pi by 2 plus theta is positive, rest all are negative. Please complete these two tables. Okay, now next is pi minus theta. Pi minus theta, how it will look? Pi minus which quadrant? सेकंड. सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन कोसेक. वेरी गुड. नाउ प्लीज पे अटेंशन. टिल नाउ the allied angles, these are allied angles, the angles which we have done are 90 ka multiple. Can you see that? 90 plus theta, 90 minus theta, 3 pi by 2 is also 90 ka multiple, right? So whenever you have a allied angle plus theta minus theta, it can be 90 plus minus, it can be 3 pi by 2 plus minus, it can be 5 pi by 2 plus minus, it can be any 7 pi by 2 plus minus. Then sine becomes cos, cos becomes sine, tan becomes cot, cot becomes tan, sec becomes cosec, cosec becomes sec. You have seen that. And plus and minus depends on quadrant. But whenever you have pi ka multiple, pi plus theta, pi minus theta, 2 pi plus theta, 2 pi minus theta, 6 pi plus theta, 6 pi minus theta, 11 pi plus theta, 11 pi minus theta, right? कुछ भी अगर ऐसा आएगा तो sine will remain sine, cos will remain cos, tan will remain tan, cot will remain cot, sec will remain sec, cosec will remain cosec.
या हेलो स्टूडेंट, सॉरी। हाँ, 180 plus theta, 180 minus theta मैं बता रहा हूँ. See what I told you, whenever you have 90 plus 90 minus 3 pi by 2 plus 3 pi by 2 minus 5 pi by 2 plus 5 pi by 2 minus कोई भी pi by 2 का ऑड मल्टीपल होगा. ऑड क्यों बोल रहा हूँ? इवन रहेगा तो वो pi by 2 बचेगा ही नहीं ना. अरे 4 pi by 2 बोला, दैट मीन्स 2 pi. 6 pi by 2 बोला, इसका मतलब 3 pi. अरे यस और नो? तो पाई बाई टू का मल्टीपल तो ऑड ही होगा ना. 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2. इवन पाई बाई टू का मल्टीपल का कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम पाई का मल्टीपल. सो इफ यू हैव पाई बाई टू का मल्टीपल, देन साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, वो सब चेंज करने का. बट इफ यू हैव पाई, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 6 pi, 10 pi, 100 pi, then all trigonometric ratios will be same. इसका मतलब sine of pi minus theta. Let me just write down. किसी ने पूछा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा? आई विल सिंपली से इट इज साइन थीटा. कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा. टैन पाई माइनस थीटा, टैन थीटा. कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट थीटा. सेक पाई माइनस थीटा, सेक थीटा. कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक थीटा. पहले हम क्या करते थे? चेंज करते थे. अभी चेंज किया मैंने? नहीं. अब हम देखेंगे साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखेंगे. अभी पाई माइनस थीटा तुमने बोला सेकेंड क्वाड्रेंट है. सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा. तो बस साइन वाले को पॉजिटिव लिखेंगे, कोसेक वाले को पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी का सब नेगेटिव लिखेंगे. समझा क्या स्टूडेंट्स? यस, कम ऑन स्टूडेंट्स. आपने जैसा टेबल बनाया ना एक एक करके, वैसे सामने लिखो. पहले आपने लिखा रहेगा साइन पाई माइनस थीटा, उसके आगे लिखो प्लस साइन थीटा. कॉस पाई माइनस थीटा, वो कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक थीटा. बाकी सब सेम विथ नेगेटिव साइन. ये समझा? ये पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, सब में वही आने वाला आंसर, क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है. तो सबका आंसर वही होगा. साइन का साइन, साइन का साइन, इधर भी साइन. उसके बाद कॉस, कॉस, कॉस. टैन, टैन, टैन. कॉट, कॉट, कॉट. सेक, सेक, सेक. कोसेक, कोसेक एंड कोसेक. अब बस साइन देखना है. अभी पाई प्लस थीटा बताओ विच क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा. यस ईशान, आई नो दैट. थर्ड क्वाड्रेंट. इन थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव होता है? टैन एंड कॉट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव. ओके, चलो. 2 पाई माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? 2 पाई माइनस 360 से थोड़ा कम. फोर्थ. फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव. 2 पाई प्लस थीटा, लास्ट वन, first quadrant, all are positive. No need to put plus or minus, because anyhow we don't put plus, then it is automatically plus only, right? सबको समझ में आया टेबल कैसे करना है? कम ऑन, कंप्लीट इट. So learn this entire allied angles table.
Okay, in next section I will revise again, and then we will start the application of these allied angles. होमवर्क में सारे फॉर्मूले 2 times लिखना है. I will create a link in the Google Classroom. You have to upload there. You will write the formula not in this manner, the way you have written right now. Sine, cos, tan, cot, every time you have to write. Clear? Okay. That's all for today. Thank you very much, students. Bye-bye.